between two major cities, and it gets importance also because of the fact that it will not only provide the end-to-end or door-to-door services, but also decongest the existing Lucknow and the Kanpur city. And many items like fertilizers, food grains, today what you will see when the inauguration day is there, the tractors which have been loaded from the factory, they will be unloaded here. And this will be also for the all kind of facilities, whether you wanted to as a last leg also, or even the initial leg also. And complete area will get economy will get a fillip in that area, and it will really be boon for that area. Next, this is a assured container service between Delhi and Kolkata. This is a container service, and it is a twice a week, and it is a 120 hour. And the best part of it is between the Delhi to Calcutta, there are two stoppages have been given, Agra and Kanpur, which are our container depots. So we will be deloading some of the containers or loading some of the container at these locations. And the best part of it, at these locations, the various customers, they can either book complete container, or also they can have the smalls also, so that they can be stuffed in the existing containers. At end point also, he can also have the both kind of facilities. The kind of services what Concor will be providing for the first leg and last leg, it is really remarkable. They are going right up to his door, whether it is 100 km, 150 km, and at the other end also the same kind of services are provided. And we have all done a few trial runs for that. Today will be the regular service announcement. Next. So if you see what I have already mentioned, and actually while the train is at this, whatever we are loading in between, and that dwell time of 6 hours or so what we are taking, it is a part of 120 hours. So now you can just see in the few trial runs, we really have a much better time even for the Delhi to Calcutta. Next, this is a route for Delhi to Calcutta, Shalimar station, and two stoppages in between, Agra and Kanpur. Next, this one is a door-to-door service between Mumbai and Kolkata, and you can just see here got a warehouse. Concor has got a warehouse. We are having a weekly service for that, and the best part is the next slide. Actually, just go next slide. You can just see on the left side we are picking up the items from. We have just taken a snapshot for one trial days. So it's a Nasik, it's 160 km, Bhiwandi 18 km, and the Pune also, and which you can see on the right side, we can delivering it at his doorstep. So, and it is only 48 hour or 60 hour of a run in between, and rest part is for the first leg and the last leg. Next. If you see from the economics point of view, we have just compared a 22.5 ton load for the company. So it is about 1,60,000, and if you just break it up for the door to door, it is 7.5% saving, and the time also we get saved. You can just see the logistic cost is really reduced drastically. This is where the Indian Railways forte is. Next. Now we'll just go to the site. So these are the door-to-door logistics services. There are three kinds, and the portal is there. Whether it is related to goods shed, whether it is related to the container, and then the last one is the shopping service. Thank you. धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह करती हूँ कि वे बटन दबाकर सोनी में इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब व भिंडी में पार्किंग। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं माननीय मंत्री जी से पुनः आग्रह करती हूँ कि वे हरी झंडी दिखाकर दिल्ली कोलकाता एशियाड ट्रांजिट कंटेनर सेवा और सोनी में ट्रैक्टर अनलोडिंग सेवा का शुभारंभ करें।
कंटेनर ट्रैक्टर अनलोड हो रहा है जी सर, दिस इज द फर्स्ट ट्रैक्टर सर दैट हैज बीन मीडिया के साथियों ट्रैक्टर अनलोड होते हुए देखो। ये सोनिक में ट्रैक्टर अनलोडिंग जो है ये देखो ऐसी जरा। सेवा का शुभारंभ भी Yes. हुआ है। अब मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने संबोधन से हमें मार्गदर्शित करें। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कॉनकोर और रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारियों को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का एक विजन है, उस विजन को एक साकार रूप आज दिया है। डोर टू डोर सर्विसेज देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी से ही रियल एफिशिएंसी आएगी, इसी से ही जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने का संकल्प है वो पूरा होगा। इसमें कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे जो लर्निंग आई और जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकल के आया, वो 3 सॉल्यूशंस आज यहाँ पर लॉन्च हुए हैं। पहला सॉल्यूशन है कि मान लीजिए किसी एक इंडस्ट्री के पास केवल कुछ ही कंटेनर है, 3 कंटेनर है, फुल कंटेनर की रेक के बराबर का सामान नहीं है, तो उस केस में क्या वो केवल 3 कंटेनर लोड करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं? तो अब तक आंसर नो था, आज के बाद में ये इसका आंसर यस हो जाएगा। दूसरा, कंटेनर फैक्ट्री से निकले और ट्रेन में चढ़े, उस एरिया की, उस डिस्टेंस की जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर अनलोड हो और वापस फैक्ट्री में पहुंचे या वेयर हाउस में पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब तक वो 2 अलग अलग चीज़ें होती थी। आज के बाद में रेलवे उसकी पूरी जिम्मेदारी डोर टू डोर लेने के लिए एक नया सर्विस चालू किया है। तीसरा, बहुत सारी जगह हमारे जो गुड शेड और जो लॉजिस्टिक्स के टर्मिनल्स बने, उसमें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जहाँ पे कंटेनर को स्टफ़ किया जा सके और डीस्टफ़ किया जा सके। स्टफ़ करना मतलब कंटेनर के अंदर सामान भरना सिस्टमेटिकली, और डीस्टफ़ करना यानी कंटेनर से सामान निकालना, जिससे कि कस्टमर्स को जो रियल डोर टू डोर सर्विस का बेनिफिट है वो मिल सके। तो आज उन्नाव में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पहला ऐसा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स टर्मिनल चालू हुआ। सोनिक गांव का नाम है, शहर का नाम है। यहाँ पर चालू हुआ जहाँ से इस तरह की एक फैसिलिटी बनी। इसी तरह के करीब 115 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स और बने हैं, जिनमें मल्टी मॉडल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा सभी कस्टमर्स का। शुरू में मुंबई से कोलकाता के इस रूट को सैचुरेट किया जाएगा, मैक्सिमम सर्विसेज इसमें चलाई जाएंगी, जिसमें एकदम एब्सोल्युटली इजी तरीके से लोगों को सामान मिल सके, लॉजिस्टिक्स की सर्विस मिल सके, एकदम अश्योर्ड हो जाए। और उसके जो लेसन्स रहेंगे, उन लेसन्स के आधार पे नए शहरों के पेयर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। वैसे ही एक और एक्सपेरिमेंट अच्छा सक्सेसफुल हुआ, जिसके आधार पर आज ये सर्विस चालू हुई, वो है ट्रैक्टर जैसे उपकरण हमारे किसानों के पास कम से कम कॉस्ट में कैसे पहुँचे। कार का तो आपको पता ही है कि बहुत एक बड़ा सिग्निफिकेंट चंक अब रेलवे से जाने लगा है, सिग्निफिकेंट शेयर जाने लगा है। वैसे ही ट्रैक्टर, जेसीबी टाइप के जितने दूसरे इक्विपमेंट हैं, उनके लिए भी अब रेलवे से फैसिलिटी तैयार हुई। यहाँ पे मैं रुकूंगा और कोई प्रश्न हो तो। सर, आज ये रेलवे का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रेलवे गुड्स ट्रेन में 100 के लगभग बुलडोजर जा रहे हैं गोरखपुर के आसपास। तो क्या सामान जा रहे हैं। हाँ, तो आपकी गुड्स सर्विस जो बड़ी है उसी गुड सर्विस के ही है सारे। Sir, if we go back to 2 years, I think at some point of time, DFCCIL had also started some concept for door-to-door service. That means an individual can directly get something from his native place or somewhere else. So
So this beginning is also going to go to that level, or it will just be at industry to industry, production hub to consumption hub, something like that, or it can go beyond that. पार्सल सर्विस जो चालू हुई है वो किसी भी कंज्यूमर के लिए, किसी भी हाउस होल्ड के लिए वो काम में आएगी। इसमें कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं इस लेवल पे लाने के लिए, क्योंकि रेलवे अब तक केवल एक बल्क ट्रांसपोर्टर रहा है आज तक, और 180 साल का 150 साल का जो एक्सपीरियंस है, इसमें एक नया आयाम जोड़ना जिसमें रोड और रेल दोनों कंबाइन हो सके, उसके लिए एक पूरा माइंडसेट चेंज करना था। कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे जो फाइनल सॉल्यूशन निकला है वो सॉल्यूशन कॉनकोर ने और रेलवे ने मिलके ये किया है। And sir, once you have more of these services, there is a possibility that there will be some problem on the track for getting more trains. So are you going to give नहीं, some ट्रैक्स kind तो of अब इतना तेजी से नए बना रहे हैं ना, हर साल 3000-4000 किलोमीटर नए ट्रैक बन रहे हैं। और आगे आपने देखा कैबिनेट में हर दूसरे तीसरे मीटिंग में कई नए प्रोजेक्ट्स भी अप्रूव हो रहे हैं। भारत को अच्छे क्लीन लॉजिस्टिक्स का देश बनाने के लिए रेलवे के बहुत सारे नए ट्रैक्स बनाने का काम हाथ में लिया गया है। सर ये गुड्स ट्रेन First is from the revenue point of view, currently where we stand, what is the larger goal that you want to have it, and also the new player that you want to attract in that countries. Players and commodities. हाँ, देखो अभी तक बड़ा फोकस रहा था रेलवे का जो बल्क कमोडिटीज हैं, कोल है, आयरन ओर है, स्टील है, लाइमस्टोन है, सीमेंट है। जो छोटे गुड्स हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटेनराइज हुए हैं, रेलवे ने पार्सल सर्विस सदियों से चलती आ रही है, कई दशकों से चलती आ रही है। पार्सल सर्विस के बजाय एक ज़्यादा प्रिफर्ड है अगर चीज़ें कंटेनर में जाए। तो आपको याद होगा 2-3 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट भी किए थे, छोटे कंटेनर्स भी बनाए गए थे, कई तरह के कई एक्सपेरिमेंट किए गए। आखिर फाइनली जो अभी कॉमर्शियल सर्विस लॉन्च हुई है, इसमें उन सब एक्सपेरिमेंट्स का निचोड़ है। उन सब एक्सपेरिमेंट से जो कुछ भी सीखा है वो सब इसमें आया है। तो पार्सल, इंडिविजुअल पार्सल की बजाय चीज़ें अगर एग्रीगेट होके एक कंटेनर में जा सके तो वो ज़्यादा सेफ रहता है, ज़्यादा इकोनॉमिक रहता है। इसीलिए जो दीपक का भी क्वेश्चन था कि कंज्यूमर्स ये कंटेनर में पार्सल्स ले जा सकेंगे। कॉनकोर जो स्टफ करेगा और डिस्टफ करेगा कंटेनर को, यानी कंटेनर के अंदर खूब सारे सामान रखना, पैक करना और अनपैक करना, वो सर्विस भी कॉनकोर प्रोवाइड करेगा। इससे ओवरऑल देश के लिए, इंडस्ट्री के लिए, प्लस कंज्यूमर्स के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए, सबके लिए एक सर्विस बनेगी। अभी चालू हुआ है, एक बार चालू हो जाए, स्टेबल हो जाए और इससे भी और कुछ नए लर्निंग्स आएंगे, उसके बाद में उसके टारगेट्स लेंगे। वो भी चला था, उसका भी उससे लर्निंग आई, बहुत अच्छा उससे अनुभव आया। इनफैक्ट इंडिया पोस्ट ने इसमें बहुत सहयोग किया था। चैलेंज ये आता है कि इंडिया पोस्ट का पूरा सिस्टम छोटे एनवेलप्स और छोटे पार्सल्स के लिए बिल्कुल उनका पूरा सिस्टम उस तरह से ट्यून्ड है। तो इसीलिए इसमें एक मल्टी मॉडल करने के लिए ट्रक से जो लेके जाते हैं सामान, उन लोगों को साथ में जोड़ के किया गया। वो अच्छा एक्सपेरिमेंट था, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। सभी के लिए बेनिफिट रहेगा, सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। सर, ऑटोमोटिव पार्ट का हम देखें तो मारुति है जो अभी मेजरली इस सुविधा को ले रही है। Hyundai भी है, किया भी है, महिंद्रा भी है, टोयोटा भी है। सर, कितना परसेंटेज आप बता सकते हैं इसी कंपनी अभी कितना हो गया होगा? 29-30% तो ही गया होगा। 30% तो क्रॉस कर चुका है और नए वैगन बन ही रहे हैं। ऑटो वैगन जो बनते हैं ना, वो बन रहे हैं खूब सारे, तो उसका वो बढ़ ही रहा है। वो तो परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। सर, कमोडिटीज के बारे में आप बता रहे थे, अभी हम देख रहे हैं कोल, आयरन, सीमेंट, ये बल्क ज्यादा है, बट अगर हम दूसरी कमोडिटीज की बात वो सब आप कंटेनर से जाएंगे ना, कंटेनर से जाएंगे। सर एक सवाल है हाँ, सिद्धार्थ। तबीयत कैसी है सिद्धार्थ? सर अभी मुश्किल से हफ्ते भर के अंदर एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को सेफ माना जाता है, लेकिन कैटल रनओवर होके पूरी की पूरी ट्रेन डिरेल। कैटल रन ओवर एक बड़ी समस्या है और उसके लिए
सिस्टमेटिकली फेंसिंग की जा रही है देश में। करीब करीब अब तक 26,000 किलोमीटर के आसपास फेंसिंग हो चुकी है और लगातार फेंसिंग का अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। जैसे मुंबई अहमदाबाद तो आपने स्वयं ने देखा ही था, वो जब फेंसिंग हुई तो कैटल रनओवर करीब करीब 0 के आसपास आ गया। तो अपने को ये जो प्रैक्टिकल रियलिटी है देश की, उसके हिसाब से फेंसिंग करनी है, सब जगह करनी पड़ेगी, सब जगह। ना, जहाँ पर भी ओवर मतलब हाइट, ज़्यादा हाइट वाली OH लगी हुई है, वहाँ सब जगह वंदे भारत या जितनी भी ट्रेन्स हैं, उन सब ट्रेन्स के लिए एक हायर लॉन्गर पेंटो उसमें लगाया गया है ऑलरेडी। तो अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो तो ज़रूर आप हमारी जानकारी में लाएं, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। कोई पर्टिकुलर जगह पे कहीं पे आई दिक्कत आपके ध्यान में? Sir, we have learned that recently there has been some discussion about a new dedicated freight corridor. Is there any plan from south to north, something like that? That one project is under discussion. If railway board chairman can share because he has attended that. इसमें काम करेंगे ज़रूर। देखो, देश को बहुत फ़ायदा हुआ है फ्रेट कॉरिडोर से, और ओवरऑल थिंकिंग इस तरह से है कि रेलवे की कैपेसिटी हमें बढ़ानी है। रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाने से देश को लाभ है, देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है, सिग्निफिकेंटली कम होती है, इसीलिए। और ग्रीन भी है ट्रांसपोर्टेशन। जैसा आपने देखा कि जो भी प्रोजेक्ट्स नए सैंक्शन हो रहे हैं उसमें कितना CO2 सेव होता है, वो आपके सामने रखा गया है। तो देश के लिए ज़रूरत है कि हम मैक्सिमम रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाएं। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स अप्रूव होंगे आपके सामने लेके आएंगे, आपके सामने लेके आएंगे ना, एकदम ट्रांसपेरेंटली लेके आएंगे। कंस्ट्रक्शन बन गई है, वो उसकी टेस्टिंग के लिए निकल चुकी है। टेस्टिंग 1 महीने की टेस्टिंग है उसकी, तो अराउंड 15 नवंबर के आसपास उसका टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा और फिर बाद में चालू कर देंगे। सर, रेलवे का जैसे टारगेट है कि आखिरी मील जो इसमें डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे, तो इसमें क्या बजट को लेकर भी कोई आप क्या लगाएंगे कि इसमें पार्सल का बजट वो निर्धारित हो, या बड़ी कंपनियां भी जैसे इसमें इन्वॉल्व होंगी, तो जाहिर सी बात है उनके पार्सल भी बड़े होंगे, आम लोगों को कैसे इसका लाभ मिलेगा? आम लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे आज भी अब किसी न किसी कुरियर के पास हम भेजते हैं पार्सल, अपना बुक कराते हैं, मान लो कोई सामान भेजना है यहाँ से अपने किसी भी जगह पे, तो वो जो कुरियर्स हैं वो एग्रीगेटर्स हैं। वो एग्रीगेटर्स फिर अब कंटेनर के अंदर अपना सामान लोड करके रेलवे के माध्यम से भेज सकते हैं। तो जैसे अभी चेयरमैन साहब ने प्रेजेंटेशन में बताया ना, 7.5% कॉस्ट कम हुई। 7.5% कॉस्ट कम होना बहुत बड़ी बात है। 7.5% अगर कॉस्ट कम होती है तो अपने आप में ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट सेविंग होगा। हो गया, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, मैं यहाँ उपस्थित और वर्चुअल रूप से जुड़ने वाले सभी माननीय अतिथियों का तथा मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। उपस्थिति में इस सभा की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। कांग्रेचुलेशन, अच्छा करिए, बढ़िया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव।